नमस्कार, मैं कणभा गुरुकुल की ओर से सुहास पटेल आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। 8 इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, सब्जेक्ट मैथ्स, चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन फर्स्ट आई रीड आफ्टर एक्सप्लेन। ओके, कैन ए क्वाड्रिलेटर ABCD बी पैरेललोग्राम। अपने को ये पूछा है कि नीचे जो भी कंडीशन दी है वो सब पैरेललोग्राम में आती है कि नहीं, वो अपने को चेक करना है। चलो, फर्स्ट इसमें दिया है एंगल D प्लस एंगल B इज 180, यस या नो। ओके, फर्स्ट दिस quadrilater ABCD, here D plus B opposite angle 180, this given. D and B is opposite angle. In the quadrilater here D and B is given 180. Okay, so sum of the adjacent angle and opposite angle D also 180. Okay, here adjacent angle sum B 180, it means ये A plus B also 180 and opposite angle may be 180। हाँ, मे बी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यह दिस इज द पैरेललोग्राम, यस या नो। यस, क्वाड्रिलेटर ABCDB पैरेललोग्राम, दिस इज सिंबल ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, नाउ सेकंड पार्ट वी स्टार्ट हियर। Here in the quadrilater ABCD, AB and DC, AB and DC 8, AD 4, BC 4.4. Okay, this here you show AB equal to CD is equal to 8, this given. So opposite these two sides are same, yes, but AD is here 4 and BC is equal to 4.4. So AD is not equal to BC. Okay, so this ABCD be not पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम नहीं है। थर्ड कंडीशन हियर। ओके, फर्स्ट ड्रू द फिगर, क्वाड्रिलेटर ABCD। ओके, here A 70 and C 65. Okay, this is a parallelogram, yes or no. First check here. Here condition is given here, A and C are not same. Here A and C, A 70, C is a 65. So angle A not equal to C. So quadrilater ABCD B not a parallelogram. Okay, नहीं होगा because opposite angle be not same. Now question number 4. Here question B is given. Draw a rough figure. आपको rough figure draw करनी है। A quadrilater
that is not a parallelogram but has exactly two opposite angle of equal measure. आपको ऐसा करना है, पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और ऑपोजिट एंगल सेम होना चाहिए. ड्रॉ करते हैं. A, B, C, D. This B and C, opposite angle B and D are same here. But this is not a parallelogram. ये सेम है पर ये ऑपोजिट साइड नॉट सेम है, इसलिए पैरेललोग्राम नहीं होगा. इसलिए उसने बोला कि आपको रफ फिगर ड्रॉ करनी है जिसके अंदर पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए और ऑपोजिट एंगल सेम होनी चाहिए, तो ये आएगा. ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन 5. Question 5. First I read the question. Here, the measure of two adjacent angle of parallelograms are in the ratio 3:2. Find the measure of each of the angle of parallelogram. इसके अंदर टू एडजेक्शन एंगल दिए हैं और रेशियो में दिए हैं 3:2. अपने देखते हैं और बाकी सब के एंगल आपको ढूंढने हैं. चलो क्वेश्चन नंबर 5. Here parallelogram A, B, C, D. Here 3:2, so 3x 2x ये सपोज किया है, बाकी सब आपको ढूंढना है. देख लेते हैं. Okay, suppose angle A is equal to 3x and angle B is equal to 2x. Okay, suppose किया है. Now we taken adjacent angle, angle A plus angle B is equal to 180. इसके अंदर एडजेसेंट एंगल जो होते हैं वो एडिशन 180 होता है. अब देखते हैं A इज इक्वल टू 3x, B 2x इज इक्वल टू 180, 3 + 2 5x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 by 5. ओके, 5 3 is 15, 3 5 6 13. Okay, so 36. Okay, now here we taken all the angle. How to find all the angle? Check first. Answer: angle A is equal to 3x, 3 into 36. 3 6 18, 1 carry, 3 3 9, 10, 108. Okay. Angle B is equal to 2x, 2 into 36, 72. So angle A is equal to angle C. Opposite angle be same, so this is also 108. Angle B is equal to angle D is equal to 72. Opposite angle is same. So these two are same, these two are same. This method we want to find quadrilateral all the angles. Now question 6. Here first find out here. Two adjacent angle of parallelograms have equal measure. Okay, adjacent angle का measure same है. Find the measure of each of the angles
ऑफ पैरेललोग्राम्स, आपको सभी का एंगल फाइंड करना है। चलो ओके, देख लेते हैं। ABCD एग्जैक्शन एंगल, सपोज ये दोनों का मेजर सेम है, एक्स एक्स लेते हैं। लेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एक्स, बोथ एंगल सेम एक्स एक्स। नाउ एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180, बोथ मेजर एग्जैक्शन एंगल एडिशन इज 180, यानी कि पास पास वाले जो एंगल होते हैं उनका एडिशन 180 होता है। एग्जैक्शन मतलब पास पास वाले। ए का x है, x 180, 2x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 2, सो 90, x इज इक्वल टू 90. Okay, so it means these two angle. Answer. Angle A is equal to angle B is equal to 90. Here also 90, this 90. So opposite angle also same. So angle A is equal to angle C is also 90. So angle B equal to angle D. This also 90. Okay. So all are 90, 90. This type we find the all the angle of question number 6. Now here question number 7. Question 7. First I read the question. The adjection figure HOPE, hope, is a parallelogram. उसने दिया है पैरेललोग्राम ड्रॉ करके दिया है। फाइंड द एंगल x, y एंड z, स्टेट द प्रॉपर्टी यू यूज टू फाइंड देम। आपको सभी प्रॉपर्टी x, y, z की फाइंड करनी है। उसे फिगर दिया है तो फिगर ड्रॉ कर देते हैं। अच्छा, फिगर इसमें ऐसी फिगर दी है, HOPE, यहाँ ऐसा आएगा एंगल x, y, here z, here 40, x 70. ओके, ऐसा दिया है। आपको x, y, z फाइंड करना है। देखते हैं। Here these two are the linear pair, T shape. Linear pair addition be 180. So x plus 70 is equal to 180. What is the linear pair? Okay, यानी ये T शेप बनता है तो दोनों का एडिशन 180 होता है। x is equal to 180 minus 70. x is equal to 110. ओके, यानी ये 110 आ गया तो दिस ऑल्सो 110। क्यों? दिस इज द पैरेललोग्राम और ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं? सेम होते हैं। एंगल O इज इक्वल टू एंगल E इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 110। ये हो गया, ये दोनों हो गया। अब देखो यहाँ 110 ये हो गया। अब अपने को ये फाइंड करना है ये y, तो y कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। ये जो है यस, ये पैरेलल ले लेते हैं, पैरेलल बिकॉज पैरेललोग्राम तो दिया ही है, और ये ट्रांसवर्सल, तो ये क्या होगा? z बनेगा। z को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, z बनेगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। लिखते हैं लाइन PO पैरेलल लाइन EH
ट्रांसवर्सल, कौन सा ट्रांसवर्सल है? PH, ओके। इसलिए ये बनेगा y इज इक्वल टू दिस y इज इक्वल टू 40। क्यों? अल्टरनेट एंगल्स, ये 40 हो जाएगा, दोनों क्या आएगा? सेम, ये 40 z बनता है इसलिए, ओके। ये कंडीशन आपको लिखनी पड़ेगी, तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ अल्टरनेट बनता है। एक पैरेलल बताना पड़ेगा दोनों का, और ये इंटरसेक्ट, ट्रांसवर्सल मतलब इंटरसेक्ट, यानी y इज इक्वल टू 40। अब देखो इसके अंदर आप देख सकते हैं ये 40 ये 110 है। अब अपने को क्या फाइंड करना है? z, बराबर। तो z फाइंड करने के लिए दो मेथड है, ये दोनों का एडिशन 180 होगा, या ये ट्राइंगल ले लो पूरा, ये दिस ट्राइंगल POH, तो सबका एडिशन क्या होगा? 180। इस तरीके से आप कर सकते हो। अब देखो 110 प्लस 40 यानी 150 आएगा, 180 में से 150 करेंगे तो 30 आएगा, z इज इक्वल टू 30, बराबर। इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। देख लेते हैं। देखो अब देख लेते हैं। और ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल बन रहा है? POH। अपने को मालूम है सम ऑफ द थ्री एंगल भी 180, एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल H इज इक्वल टू 180। P है 40, O 110, और ये जो है z फाइंड करना है 180। 150 प्लस z इज इक्वल टू 180, 180 माइनस 150, z इज इक्वल टू 30। इस तरीके से अपने को z भी मिल जाएगा, ओके। अब उसके बाद बाकी के जो दो है, बराबर, वो करने हैं। देख लेते हैं पहले कैसे होता है, उसके बाद चालू करते हैं। पहले ये आपको सबको मालूम तो पड़ ही गया होगा, फिर भी आपको एक बार रिवाइज कर सकते हो कि कैसे होता है, ओके। इस तरीके से आपको पैरेललोग्राम की कंडीशन भी मालूम पड़ गई और सारे एक्सरसाइज भी मालूम पड़ गई, ओके। नमस्कार, बाय, सुहास पटेल, and do properly because this is very important for your standard 9, 10, okay. Namaskar.